ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2024-25 کا بجٹ آ گیا ہے۔ ملازمین کے نہ ہاؤس رینٹ میں اضافہ کیا گیا، نہ ملازمین کے کنوینس الاؤنس میں اضافہ کیا گیا، نہ میڈیکل دیا گیا ملازمین کو۔ پیٹرول اس وقت 259 روپے لیٹر ہے، اور جس وقت 64 روپے لیٹر تھا اس وقت کنوینس الاؤنس میں اضافہ کیا گیا تھا۔ ہاؤس رینٹ میں 2005 کے بعد سے اضافہ نہیں کیا گیا صوبائی ملازمین کا۔ میڈیکل الاؤنس میں بھی ابھی تک اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بیسک کا 2022 کے اسکیل کی بیسک کا 45% دیا جائے، 2022 کی بیسک کا 45% دیا جائے، ٹھیک۔ میڈیکل الاؤنس بھی 2022 کی بیسک کا دیا جائے، ٹھیک، اور کنوینس الاؤنس ہمارا پینل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ میڈیکل الاؤنس ہمارا پینل کیا جائے، کنوینس الاؤنس 2022 کا دیا جائے، ہاؤس رینٹ 2022 کا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، جو یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تقریر کی قومی اسمبلی میں، بڑی دھواں دھار تقریر کی، تو اس پر ہم کچھ ایسا کہتے ہیں کہ یہ وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، شوگر مافیا، آٹا مافیا، یہ بزنس ٹائکون، جو پاکستان کو نوچتے رہے، کھاتے رہے، 78,000 ارب کا جو قرض ہے پاکستان کے اوپر، اس کا 40% MNA MPA اور سینیٹرز جو ہیں یہ 50% اپنی جائیداد کا دیں۔ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، یہ شوگر مافیا، یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ سرمایہ دار، ایگریکلچر پہ بھی ٹیکس عائد کیا جائے۔ ایران سے ہم پیٹرول کیوں نہیں خرید رہے، جو کہ معیشت کا 38% بنتا ہے، 38%، 38% معیشت پہ بوجھ کم ہو جائے گا، 100 پہ 38% معیشت پہ بوجھ کم ہو جائے گا۔ ہم ایران سے پیٹرول لیں، کیوں ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں؟ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اسلامی ملک ہے، برادر ملک ہے، اس کی طرف جائیں ہم، ٹھیک۔ اور یہ جو سرکاری ملازمین پہ ابھی تک ٹیکس ختم نہیں کیا گیا، جو اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے، جبکہ FBR کی رپورٹ ہے سب سے زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے، تو تنخواہ دار طبقے پہ مزید ٹیکسز کا بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس ٹیکس میں نرمی کی جائے، اس پہ سے جو ٹیکس بڑھایا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہاؤس رینٹ، کنوینس الاؤنس، میڈیکل پینل پہ دیا جائے، کنوینس الاؤنس بڑھایا جائے، ہمارا 2022 کی بیسک کے حساب سے کنوینس الاؤنس کو بڑھایا جائے۔ 2011 کے بعد سے کنوینس الاؤنس نہیں بڑھا، ہاؤس رینٹ 2005 کے بعد سے نہیں بڑھا، اس کو بھی 2022 کی بیسک کے حساب سے 45% دیا جائے، ٹھیک۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ سینیٹر، MPA MNA، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، صنعت کار، اور یہ بیوروکریسی، سب 50% اپنی جائیداد کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عوام، 25 کروڑ عوام کی طرف دیکھیں ہم کہ یہ بھی ٹیکس دیں، یہ بھی اس قرض اتاروں کو حصہ بنے۔ 38% میں 40% تو یہ لوگ دیں، جس میں نواز شریف، زرداری صاحب، سب بڑے لوگ شامل ہونے چاہیے۔ یہ بھی اپنا 50% دیں، MNA MPA سرمایہ دار بھی اپنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، بہت کمایا پاکستان سے، کچھ نکالیں گے تو نمک ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، ٹھیک۔ یہ پرچونوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، دکانداروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، سپر مارکیٹوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان پہ ٹیکس لگائیں، کیونکہ یہ جو سیل کرتے ہیں ان پہ تو کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے، لیکن یہ عوام سے وصول نہیں کیا جائے۔ جو خریداری کر رہا ہے اس کو ٹیکس لگا کے بل ہاتھ میں نہ تھما دیا جائے، یا سودے کو مزید آئٹم پہ قیمتیں مزید انکریز نہ کر دی جائیں، اس پہ بھی حکومت کو نظر رکھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ
तेल, घी, आटा, चीनी, दाल, चावल, मसाले, गरम मसाले, ज़ीरा, इनको देखें। फ्रूट्स में देखें, सब्जियों में देखें। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऐलान किया है कि प्याज 60 रुपये किलो बिकेगी, जबकि 140 और 160 रुपये किलो प्याज बिक रही है। आलू गवर्नमेंट ने ऐलान किया 40 रुपये किलो बिकेगा, जो कि 150 रुपये किलो बिक रहा है। कहाँ है गवर्नमेंट के रेट? अदरक बताई 380 रुपये किलो बिकेगी, जो कि 1180 रुपये किलो बिक रही है। लहसुन बताया कि 280 रुपये किलो बिकेगा, जो कि इस वक्त बिकी 980 रुपये किलो रहा। अब बताएं इसमें फ्रूट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ABCD जो क्वालिटियाँ हैं उस हिसाब से फ्रूट की कीमतें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए की भी कीमत, ए की तो मिलते ही बहुत मुश्किल से है, डी की कीमत ए की कीमत पे वसूल लिया जा रहा होता है। यही परचून की दुकानों पे भी यही हाल है। छोटी दाल की दाल ली जाती है और बड़ी दाल की कीमत वसूल ली जाती है। गोश्त है, मुर्गी है, बकरे का गोश्त है, मछली है, इस पे भी नज़रसानी की जाए। जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हैं उस पे चीज़ें बिकी नहीं रही। जो हमारी मुसल्लह अफ़वाज है, ये बहुत मज़बूत और बहुत ताकतवर इदारा है। इसकी तनख्वाहें जितनी बढ़ाई जाएं कम है, क्योंकि ये मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, ये सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। ये दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारी आवाम सुकून में रहे, सुकून का सांस ले, ये मुल्क सुकून का सांस ले। पाकिस्तान आर्मी है तो मुल्क है, हम हैं। पाकिस्तान आर्मी की बदौलत दुश्मन हमारी तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। ये पाकिस्तान आर्मी की शान है। पाकिस्तान आर्मी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान आर्मी ही है जिसकी वजह से दुश्मन खामोश बिल्ली बना अपने दरबे में बैठा रहता है। ये पाकिस्तान आर्मी का ही जिगरा है जो मुल्क की हिफाजत कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी बहुत ज़रूरी है कि मुल्क और वतन और आवाम के दरमियान पाकिस्तान आर्मी का जो रिश्ता है वो हमेशा कायम दायम रहेगा। पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। आगे चलते हैं। अब हम के इलेक्ट्रिक के ऊपर के ऊपर बात करते हैं। के इलेक्ट्रिक नहीं, के ऊपर बात करते हैं। 26 अमवात हो चुकी हैं कराची में, लेकिन लोड शेडिंग का जो दौरानिया उसमें कमी नहीं आ रही। बदतरीज लोड शेडिंग में इजाफा हुआ जा रहा है। 15 से 16 घंटे की थी, अब 16 से 17-18 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है। ये बदतरीन लोड शेडिंग है। ना रात सोने दी जाती है, ना दिन सोने दिया जाता है। इस वक्त आप टाइम का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। जिस वक्त ये वीडियो बन रही है अभी लाइट आई है और बदतरीन लोड शेडिंग का निशाना बनाया हुआ है। आज 25 तारीख का दिन था, टेम्परेचर 44 था और हीट जो है 50 महसूस की जा रही थी, इतनी हीट थी और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था। इससे हम बड़े परेशान रहते हैं। हम लोग पूरा कराची इससे परेशान है। पूरा कराची में लोड शेडिंग का एक जिन बोतल से बाहर आ चुका है। ये अपने बिन कासिम पावर स्टेशन क्यों नहीं चला रहे? क्यों ये मसनूई लोड शेडिंग का ज़रिया बने हुए हैं? आवाम के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो टैक्स आयद किया था, बिल रिव्यू किए थे नेपरा ने, वो जुलाई के लिए किए थे, वो जून में ले लिए गए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में। क्यों? ये वो सवाल आते हैं जो जवाब दिए जाएं। पिछले महीनों के फ्यूल एडजस्टमेंट कैसे लिए जा सकते हैं? 2023 का फ्यूल एडजस्टमेंट कैसे लिया जा सकता है 2024 जून के बिल में? ये समझ से बालातर है। इस पे अफवाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब से दरख्वास्त है, सो मोटो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और आर्मी चीफ फिलफोर सो मोटो लें। आवाम के दुख और तकलीफ़ का अफवाज पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह बखूबी, क्योंकि अफवाज और आवाम का दिल का रिश्ता है, जान का रिश्ता है। ये एक जान एक कल्ब है, इसलिए फिल फॉर एक्शन है। और सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग का शिकार एरिया 37B लांडी नंबर 1 छोटी मार्केट को बनाया हुआ है इन्होंने,
जहाँ 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। बदतरीन लोड शेडिंग, ना दिन में लाइट होती है, ना रात में होती है, ना सोने दिया जाता है, ना नौकरियों पे कैसे जाएं, नींद पूरी नहीं होती। वहाँ जाते हैं डांट सुनते हैं, ना पानी है ना गैस है। गैस की भी बदतरीन लोड शेडिंग है। जो शहर 72% रेवेन्यू देता है, जिससे मुल्क चलता है, उस शहर को अंधेरों में डुबो दिया गया है, गैस की तारीकियों में डुबो दिया गया है। पानी ना होने के बराबर है। लोग पानी भी ख़रीद के पीते हैं इस शहर में। ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शहर है, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा। और आगे चलते हैं तो मज़ीद रोशनी डालते हैं इस बात पर कि मरियम नवाज़ साहिबा ने तो मेरा घर मेरी छत स्कीम का ऐलान कर देंगी 14 अगस्त को, लेकिन पीपल्स पार्टी जो रोटी कपड़ा और मकान की ज़ामिन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, भुट्टो साहब और बेनज़ीर ने तो आवाम के साथ दोस्ताना और हमदर्दाना ताल्लुकात हमेशा रखे हैं। लेकिन इस वक्त आवाम और तनख्वाहदार तबका हुकूमत सिंध और बिलावल भुट्टो की तरफ देख रहा है कि पंजाब में तो मेरा घर और मेरी छत का ऐलान कर दिया जाएगा 14 अगस्त को, तो सिंध गवर्नमेंट कब मेरा घर और मेरी छत का इंतज़ाम करेगा। आसान शराइत पे लोन देगा कि लोग अपनी छत खरीद सकें। ये हुकूमत सिंध से पुरज़ोर मुतालबा है कि इस पर रोशनी डालें, फिलफौर इस पर रोशनी डालें। दूधों की कीमतों का भी तयन करें, बच्चों की डब्बों पे प्राइस मौजूद रहे, और जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं उसका सेल टैक्स हम पे ना लगाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी डब्बे पे सेल टैक्स लगा हुआ है। जो हम ख़रीदते हैं उसके बाद वो जो मिसाल के तौर पे हम सुपर स्टोर से ख़रीद रहे हैं या परचून की दुकान से ख़रीद रहे हैं या जनरल स्टोर से ख़रीद रहे हैं, जो उनकी सेल मतलब उनकी आमदनी का टैक्स है वो भी आवाम से वसूल लिया जाता है। इस पे भी निगरानी बनाएं, इस पे भी मॉनिटरिंग कमेटियाँ बनाएं। और ये जो 2 नंबर चीज़ें मार्केटों में दस्तयाब है, दुकानों पे दस्तयाब है, सुपर स्टोरों पे दस्तयाब है, इसका भी रोकथाम करें। एक जामे पॉलिसी बनाएं, जामे पॉलिसी। MP MNA सेनेटर्स पे टैक्स लगे, जागीरदार वडेरा सरमायादार पे टैक्स लगे, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगे, शुगर माफिया पे टैक्स लगे, इंडस्ट्रीज़ जो शुगर चला रही हैं उन पे लगे, गन्ने पे टैक्स लगे, ये बहुत ज़रूरी है। इनकी आमदनी, गंदम पे टैक्स लगे, गंदम माफिया पे, गंदम पे नहीं, गंदम माफिया पे टैक्स लगे, आटे की मिलों पे टैक्स लगे, लेकिन आवाम से नहीं लिया जाए, इनकी आमदनी पे टैक्स लगाया जाए कि जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से टैक्स दें गवर्नमेंट को। ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात में ये टैक्स दें। तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है, उस पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ नहीं डाला जा सकता। दूसरे इदारों पे टैक्स लगाएं। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं जिस पे कोई टैक्स ही नहीं है। MP MNA सेनेटर्स पे कोई टैक्स ही नहीं है। इनकी जायदादों का पता ही नहीं 1947 में क्या थी, आज 2024 में क्या हुई, कितना कमाया, कितना धन कहाँ से आया, ये हम जानना चाहते हैं। ये 25 करोड़ आवाम जानना चाहती है। और जो IMF से अपनी अय्याशियों के लिए कर्ज लेते हैं तो 40% इसका ये भी दें। सरमायादार, जागीरदार, वडेरे, शुगर माफिया, ये सब अदा करें। नवाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, सब दें। MNA MPA सेनेटर्स भी दें। 78% का जो कर्ज पाकिस्तान ने IMF से लिया हुआ है उसका 40% ये लोग उतारें, फिर 38% आवाम से ले। ये कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के पैसे कहाँ गए, ये डैम के पैसे कहाँ गए। और ये जो वज़ीर ख़जाना साहब आज बजट स्पीच कर रहे थे असम्बली में खड़े होके, तो ये अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते। आप पे टैक्स कब FBI लगाएगा, MPA सेनेटर और MNA MPA सेनेटर्स पे कब टैक्स लगेगा, जागीरदार वडेरा सरमायादार पे कब टैक्स लगेगा, एग्रीकल्चर पे कब टैक्स लगेगा। IMF कहता है पेट्रोल पे टैक्स लगाओ, IMF कहता है बिजली पे टैक्स लगाओ, IMF कहता है गैस पे टैक्स लगाओ, IMF कहता है पानी पे टैक्स लगाओ। IMF ये नहीं कहता कि जो बिजली MP MNA सेनेटर इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर
فری بند کر دو، جو گیس یہ استعمال کرتے ہیں فری یہ بند کر دو، جو پیٹرول کی گاڑیاں یہ استعمال کرتے ہیں عوام کے پیسوں سے وہ بند کر دو، جو یہ لانڈری عوام کے پیسوں سے استعمال کرتے ہیں اسے بند کر دو۔ یہ نہیں کہتا آئی ایم ایف، اپنی عیاشیوں کو کم کرنے کو نہیں کہتا آئی ایم ایف۔